I can also share the screen ना, क्योंकि मैंने PDF खोल के रखा है, because you know even if you want to go like मेरे को अगर पेज टर्न करना I can do. Yes, you are the co-host, you can आराम से share screen everything. You want. Yes, कोई कुछ बोल रहा था? Yes. Yeah, I think मतलब I'm doing the class, but at the same time थोड़ा ये होता है कि normally we are spending our life casually, very casually, but जब कर रहे हैं तो हम conscious हो जा रहे हैं कि जब अच्छी बातें सीख रहे हैं, वहाँ लगता है कि मतलब थोड़े conscious हो जा रहे हैं every time. So is it with everybody or मेरे साथ ही हो रहा है कि ये सबके साथ ही होता है? I'm not getting it. ये सबके साथ होता है, and that's the first step. Ladder का first step ही है कि to get aware, to conscious of what you are going through, what you are feeling. अगर आपने वो step ले लिया तो आप आगे भी आराम से ऊपर चलते चले जाओगे, है ना? अगर हम लोग conscious ही नहीं हुए, aware ही नहीं है कोई चीज के लिए, तब तो जैसे जी रहे थे हम लोग नीचे के नीचे ही खड़े हैं और हम लोग चाह रहे हैं हम लोग ऊपर पहुंच जाएं. But it's not so going on the right track only. Absolutely. अब जब तक उसको सुन के रहेंगे और जब तक उसको कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लाइफ में, then no point. मतलब कुछ भी करने जाते हैं तो वहाँ रियलाइज होता है कि पहले ये गलत था, now I have to correct it. So yes, wonderful. Realization ही तो first है. हम लोग तो कितना कुछ कर जाते हैं, रियलाइज ही नहीं करते हैं, है ना? लगता है हम तो कभी गलत ही नहीं है, हम तो रॉन्ग ही नहीं है. तो लग रहा है बहुत जगह गलत थे, अब तो फील हो रहा है we have to correct it. वैसा फील हो रहा है तो wonderful. You are absolutely in the perfect path. Okay, thank you so much. Thank you. And later on, when it will become habit, तब से वो नहीं रहेगा कि क्या चीज में like you have to be aware or not. वो habit हो जाएगा ना फिर. अभी हम लोग almost सब around, I don't want to say anyone's age, अगर 35, 40 जिस एज में भी है, इतने ईयर से किस चीज की प्रैक्टिस थी और अभी हम लोग 1 month में चाहते हैं हम लोग की हैबिट चेंज हो जाए. How is it possible? दोनों डेट So this will also take some time. Give yourself some time. हाँ, लेकिन एफर्ट तो लेना पड़ेगा. बैठे लेटे भाई सब हो जाए, मेरे में पॉजिटिविटी आ जाए, सब अच्छा हो जाए, चाहते सब ऐसा ही है पर ऐसा होगा नहीं, होता नहीं. So we'll have to make that much effort, and it's, believe me, अगर हैबिट हो जाएगा, हम लोग भूलते हैं सुबह ब्रश करना ही है ना? हैबिट हो गया, we can't stay even if we think I'll not do, वो अच्छा ही नहीं फील होगा. So even this becomes a habit. अगर नहीं करेंगे ना तो ये अच्छा फील ही नहीं करेंगे. Your feeling will be different altogether. बाद में लगेगा कैसे मैं ऐसे पहले गॉसिप करती थी, कैसे मैं इतना बोलती थी, ये सब because the habits change हो गए. Share one thing, Suman here. Suman. Yes, जब से like start. नहीं आ रहा है आवाज सुमन जी, क्लियर नहीं है. Can't hear you. Is it not coming? हाँ जी, yes. अभी भी हाँ सुन रहे? नहीं अब नहीं आ रहे, सॉरी. चैलेंज आई थिंक. अब सुन रहे हैं क्या? हाँ क्लियर है. हाँ, वो एक्चुअली ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया था मैंने. हाँ, like the day when I joined your class since last 3 months, the magic class. From that day and today, lots of change has come. I can feel within. Because एकदम calm and serene हो गई हूँ. Because मुझे बहुत थोड़ा हलचल and all that. I am that type of person. But अभी बहुत like intellectually, mentally, I can say like I take decision also very fast. And calm and serene was the best part of life, which I was searching since many days कि भाई इतना क्यों हड़बड़ हर चीज में. But then now I can see कि वो काम सब हो रहे हैं, but एक calm and serene है मेरे में. Lovely. Very So good. thanks to you. Thanks to you that you took this initiative और आपने implement किया, practice किया. नहीं करेंगे Yeah, that I do. बहुत है. Then again we are in 95%. अरे किसी ने वो उसका बारे में बात हुआ, सबने सुन लिया ना वो ऑडियो, उससे 95% 5% से याद आया. Science of getting rich. Yes. हाँ जी. That's wonderful. So we have to decide हम लोग को 5% में जाना है कि 95% में रहना है. We always have a choice. So I think let's start reading. Otherwise, so today the chapter is all about the power of feelings. So who would like to read today? आज English में read करना है. Enter 2. I can read.
ये तो हो गया ना ये वाला तो। हाँ, किसने बोला रीड करना चाहते हैं? ज्योति जैन। ज्योति जी, ऑलराइट। आपको दिख रहा है स्क्रीन? मेरे पास बुक है, आई ओपन द बुक। ओके, बाकी सब जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पे देख के आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज साथ में पढ़ें। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखें अपार्ट फ्रॉम ज्योति जी। अपार्ट फ्रॉम ज्योति जी सब अपने आप को म्यूट कर लें। थैंक यू। सो हियर हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं द पावर ऑफ फीलिंग्स, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम लोग को वेव्स दिख रहे हैं। तो पावर ऑफ फीलिंग्स भी क्या है, ऐसा थोड़ी जल तरंग की तरह है। जो हम लोग फील करते हैं वो सामने वाला भी फील करता है, तो वो उसके यहाँ पे वेव्स की तरह तो जा ही रहा है ना, यहाँ वो सामने वाला भी फील करता है उसको। जैसे साउंड ट्रैवल करते हैं यू नो इन वेव्स, तो वैसे फीलिंग्स भी हम लोग की ट्रैवल करती है इन वेव्स। अगर हम लोग किसी के लिए अच्छा फील करें, नहीं बोलते किसी से अच्छी वाइब्स आ रही है, अच्छा वाइब्स नहीं आ रहा है, तो यू कैन फील इट, वी कैन सेंस इट, कैसा फीलिंग्स है। द पावर ऑफ फीलिंग्स यू नो वो भी ऐसे ट्रैवल करते हैं, धीरे 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 यू नो वो भी फेंट होता जाता है। पहले जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते हैं और फिर वो धीरे ओवर द टाइम पीरियड कितनी बार वो फेंट भी हो जाता है। सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ट्रैवल लॉन्गर। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी के लिए तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फेंट हो जाता है। एंड ये भी एक वेव्स की तरह चलता है, इसीलिए यहाँ पे वेव्स बनाया है। एंड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज मीन्स नो लाइफ, नथिंग, नो फीलिंग्स, डेड, राइट। तो इसीलिए ये वेव्स में है, तरंग में है। सो यस, यस स्टार्ट ज्योति जी। फीलिंग इज द सीक्रेट। नीविले गॉडार्ड 1905 से 1972, न्यू थॉट ऑथर। यू Yes. आर अ फीलिंग बीइंग। हाँ, so एक From मिनट, the- फीलिंग इज द सीक्रेट। अभी तक हम लोग को लग रहा था कि हम लोग के अंदर क्या है, ये पावर क्या है, लव है। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं फीलिंग है, तो लव इज अ काइंड ऑफ फीलिंग ओनली ना, एक इमोशन ही तो है, एक फीलिंग ही तो है ना। तो वो जितना उसकी अब हम लोग को पता चल रहा है सीक्रेट है क्या है, फीलिंग। अगर हम लोग किसी को ऊपर से बोल देते आई लव यू, हर किसी को बोल देते आप मुझसे प्यार नहीं करते, अच्छा ठीक है आई लव यू। अब किसी को ऐसे बोलेंगे तो आपको फील आएगा और आपको समझ में आएगा कौन एक्चुअल आपसे प्यार करता है और कौन एक्चुअली आपसे प्यार नहीं करता है। वी फील दैट लव, है ना। वो इमोशन है, वो अपने आप समझ में आता है जब हम लोग बोलते हैं कि आई रियली लव यू। एग्जैक्टली, है ना। तो जिससे यू फॉल इन लव ऑल्सो, क्या एक दिन में किसी से प्यार हो जाता है क्या? अरेंज मैरिज में तो वैसे भी मुझे लगता है बहुत ही ग्रेजुअली होता होगा कि फर्स्ट डे ही हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सो फीलिंग ऑल्सो ग्रोज ऑन यू, है ना, होते होते प्यार हो जाएगा। वी ऑलवेज से दैट। देखो कहाँ पहुंच गई प्यार में। सो या सो वी चूज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, कलर, प्लेस। हर चीज में हम लोग अगर किसी कलर से प्यार करते हैं, किसी पर्सन से प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं, वो फीलिंग ही तो है ना, एक तरह से लव भी तो एक फीलिंग ही है। तो हम लोग उसी हिसाब से किसको हम लोग ज्यादा फीलिंग देते हैं, प्यार देते हैं हम लोग। कलर्स तो सब कलर्स हैं, ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, बट किसी को ब्लैक से प्यार है, किसी को रेड से प्यार है, किसी को ब्लू से प्यार है। तो हम लोग जिस पे अपना एनर्जी देते हैं, फीलिंग्स देते हैं, वही जनरेट होता है और वही हमारे सामने ज्यादा आता है। सो यू आर अ फीलिंग बीइंग। यस ज्योति। From the moment you are born, you are always feeling something, and so is every other person. You can stop your conscious thoughts when you are sleeping, but you can never stop feeling, because to be alive is to feel life. You are a feeling being to the core of you, and so it's no accident that every part of your human body is created so you can feel life. या तो हम जब से बॉर्न हुए हैं तब से हम लोग में यू नो फीलिंग तो है ही ना। बच्चे को अवेयर है भी कि नहीं है पता नहीं, लेकिन उसमें फीलिंग्स तो है ही ना। जब उसे अच्छा नहीं लगता है तो वो रोता भी है, भूख लगता है तो भी रोते हैं, तो वो फीलिंग ही तो है। उसको समझ ही तो आ रहा है कि मैं अभी भूखा हूँ, अभी वो इरिटेट हुआ है, अभी वो हैप्पी फील कर रहा है तो वो हंस रहा है। तो इट इज ऑल द टाइम, सिंस द टाइम वी आर बॉर्न एंड टिल टुडे, वी ऑल आर अ फीलिंग बीइंग। हम लोग क्या बोलते हैं अपने आप के लिए, ह्यूमन बीइंग। वी हैव ऑलवेज कॉल्ड आवरसेल्फ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या है, ऊपर का बॉडी और शरीर, एक वही तो है, एक इंसान है। ह्यूमन बीइंग बोलने से ये समझ में आता है कि ये एक इंसान है, ये एक एनिमल बीइंग है तो ये एक एनिमल है। बट फीलिंग बीइंग ओनली ह्यूमंस हैव गॉट, लाइक एनिमल्स आल्सो हैव फीलिंग्स बोलते हैं, लेकिन बट वी आर फीलिंग बीइंग राइट फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न। हम लोग सो भी रहे होते हैं तो हम लोग कॉन्शियस थॉट्स की क्या करना है क्या नहीं है, लेकिन शायद बंद हो जाए, लेकिन हम लोग क्या फील कर रहे हैं,
हैप्पी फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, फीलिंग हमेशा हम लोग का ऑन रहता है. सो वी कैन नेवर स्टॉप फीलिंग. सो बिकॉज टू बी अलाइव इज टू फील लाइफ. लाइफ इज ऑल अबाउट दैट. इसीलिए हम लोग का बोलते हैं ना, ह्यूमन बॉडी एवरीवेयर. कहीं भी हम लोग को अगर कोई टच करेगा, पिंच करेगा, मारेगा, तो एवरीवेयर वी जस्ट फील द हर्ट, राइट. कोई पिंच कर रहा है तो भी हम लोग फील ही तो कर रहे हैं. तो हम लोग वी हैव बीन मेड एज अ फीलिंग बीइंग. यस यस ज्योति जी. You have the sense of sight, hearing, taste, smell, and touch, so that you can feel everything in life. They are feeling senses because they enable you to feel what you see, feel what you hear, feel what you taste, feel what you smell, and touch. Your entire body is covered with a fine layer of skin, which is a feeling organ, so you can feel everything. या सो हम लोग का बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा है? सेंस ऑर्गन. Skin. Yes, skin. It's all of like our body is covered with skin, है ना. हम लोग पूरे स्किन से कवर हुए हैं. And that's the feeling organ. वही तो हम लोग सब कुछ फील कराता है. गर्म है, ठंडा है, सॉफ्ट है, हार्ड है. All these we can feel, you know, because of the skin. तो हम लोग के senses, this feeling senses, क्या आप जो मैजिक में है ग्रेटिट्यूड देते हैं? क्या सब कोई 5 सेंस ऑर्गन्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं एवरीडे? यू नो, इट्स दैट इम्पोर्टेंट इन लाइफ. Yes. 5 elements of the universe and 5 sense organs. तो ये बहुत ही जरूरी है. यू नो, जब हम लोग को ठीक से सुनाई नहीं देता. जस्ट इमेजिन, अभी तो इन दिनों तो आई थिंक आई बिकम सो अवेयर. अभी कौन केबीसी देखता है? आई तो लव एंजॉय वाचिंग केबीसी. उसमें देयर वाज वन पार्टिसिपेंट, हेमा जी. She could not see. She has lost her eyesight and she won, I think 1 crore. I saw that episode. 1 crore. 1 crore. मतलब what an amazing personality. How inspirational she was. मतलब she had, and उनका जिंदा दिली देखे. अरे जियो तो खुल के जियो, रोते हुए तो सभी जीते हैं. उसमें अलग क्या किया? सुना था आप लोग ने? मतलब that touched my heart. मतलब ये बोलते हैं ना, अंदर से वो जो हार्ट स्ट्रिंग्स टच हो जाते हैं. हम लोग कैसे छोटी छोटी चीज को लेके क्रिप कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, रो रहे हैं. एंड लुक एट दिस लेडी, शी इज बीइंग अ टीचर. उसको छोड़ देते हैं, वो बच्चों को पढ़ा रही है और कितनी जिंदा दिल है. शी हैज नो कंप्लेन रिगार्डिंग हर लाइफ. शी इज लिविंग हर लाइफ टू द फुल. तो मुझे लगता है ये सब चीज जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए. बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यू नो. तो उससे हमारी फीलिंग्स भी चेंज होती है. जो हमारे कंप्लेन्स है ना, वो खत्म हो जाते हैं. यू नो, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू बी हैप्पी अबाउट. So again, I'm sorry, मैं विचलित हो गई. Your entire body is covered with a fine layer of skin, so we are a feeling being. वो हम लोग को enable करते हैं. ये तो साइंस है, हम लोग सबको पता है. Let's move ahead. Yeah. How you feel in any one moment is more important than anything else, because how you feel right now is creating your life. Yeah. So how you feel in any moment is more important because हम इस समय कैसा फील कर रहे हैं वही हमारी लाइफ बना रही है. अगर अभी हम इरिटेटेड हैं तो वो अभी के टाइम के 1 सेकंड 1 मिनट के बाद ही तो हमारा फ्यूचर बन रहा है ना. 1 घंटा बाद भी फ्यूचर है, आधे घंटा के बाद भी फ्यूचर ही है, राइट. सो बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इफ आई एम इरिटेटेड, इफ आई एम एंग्री, उसका प्रभाव क्या होगा? मैंने अपने बच्चे को भी इरिटेटेड हुआ, बच्चे को डांटा, अपने स्टाफ को डांटा, तो वो आने वाले टाइम में भी क्या हुआ? हम लोग का 1 घंटा बाद वो पूरा इरिटेशन और एंगर में निकला. तो एवरी मोमेंट वी आर creating our own future, right? So we have to always pause and check our feelings कि मेरी अभी feeling क्या है. So if we are feeling positive, अगर हम अच्छा feel कर रहे हैं तो वो हमारा आने वाला समय, हमारा आने वाला टाइम भी अच्छा ही होता है, right? Even if we are happy at this moment, तो वो हम लोग क्या होते हैं, स्टाफ पे भी हम लोग नहीं करते बहुत अच्छे से. अरे वाह क्या चाय बनाई है तुमने, आज तो मजा आ गया, आज तो वेदर इतना अच्छा है. बच्चे के साथ भी कम ऑन लेट्स प्ले अ गेम. बच्चा कुछ बोल भी देता है तो हम लोग को लगता है अरे चल छोड़ना. लेकिन वही अगर हम लोग इरिटेटेड मूड में होते तो क्या होता है, वो एग्रेवेट हो जाता है, एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, है ना. सो एवरी टाइम वी आर मूड, आर फीलिंग इज क्रिएटिंग आर फ्यूचर. यस, योर फीलिंग्स आर द फ्यूल. Your feelings are the fuel. Your thoughts and words have no power at all in your life without your feelings. You think so many thoughts in a day that don't amount to anything because many of your thoughts don't elect a strong feeling within you. It's what you feel that matters. Imagine your thoughts and words are as being like a rocket ship and your feelings as the fuel.
A rocket ship is a stationary vehicle that can't do anything without fuel because the fuel is the power that lifts the rocket ship. It's the same with your thoughts and words. Your thoughts and words are vehicle that can do anything without your feelings because your feelings are the power of your thoughts and words. सी कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे. आवर थॉट्स एंड वर्ड्स हैव नो पावर एट ऑल इन आवर लाइफ अगर उसमें फीलिंग ही नहीं है. कितनी बार कोई बोलता है ना सॉरी, तो हम लोग बोलते हैं ना मन से बोलो, सॉरी बोलो, यू मस्ट फील इट, यू मस्ट रियलाइज इट दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक. बोलते हैं ना मन से बोलो. आई लव यू बोलते हैं ना, क्या ऊपर ऊपर से बोल दो, मन से तो बोलो, है ना. तो दिस इज लॉट, योर थॉट्स एंड वर्ड्स हैव नो पावर अगर उसमें फीलिंग्स नहीं है. हम लोग बोलते हैं इफ यू रियली फील सॉरी देन ओनली यू से सॉरी. जनरली ये सिबलिंग्स में हम लोग ने देखा है, और अब तो क्या बच्चे बड़े होते हैं तो भी बोलते हैं अगर सॉरी हो तो सच में फील करके बोलो. ऊपर अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी. तो पता चल जाता है फीलिंग्स है कि नहीं है ना. हम लोग को भी समझ में आ जाता है. जैसे जब हम लोग गुस्सा होते हैं तो हम लोग बहुत चिल्ला के बोलते हैं. एक हम लोग अगर गुस्से में बोलते हैं, एंगर इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीलिंग, राइट. सो हम लोग जब बोलते हैं ना तुमको बोला था ना ये काम करने के लिए, तुम किए नहीं, और हम लोग को पता चल जाता है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग. और कभी हम लोग हो सकता है उसको कंट्रोल करके भी बोल सकते हैं, बेटा आप ये काम करते तो अच्छा होता. तो उससे पता चलता है फीलिंग क्या है. और बच्चे को तो बहुत जल्दी पता चल जाता है. उन लोग बिवेयर हो जाते हैं कि अभी मम्मी से बात करना है कि नहीं करना है. शी इज नॉट इन अ गुड मूड. फीलिंग्स वो कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग जैसे हम लोग देते हैं वैसा ही हमें मिलता जाता है, राइट. सो रॉकेट यहाँ पे बोले, रॉकेट देखिए कितना पावरफुल है. वो एक स्टेशनरी है, अगर उसमें फ्यूल ही नहीं डाला तो उसका कोई वर्क है, कोई काम नहीं आएगा. तो वैसे ही है. और कल जैसे कल परसों कब सुवर्णा जी ने जो बताया था ना, अंगीठी वाला एग्जाम्पल दिया था, परसों बताया था. हाँ. तो उसमें हम लोग ईंधन जैसे डालते हैं, अगर वही नहीं डालेंगे तो ऊपर से क्या वो आंच आएगी? नहीं. तो हम लोग को भी नीचे से वो फीलिंग्स देना है. हम लोग को इस रॉकेट में भी फीलिंग्स डालना है. तभी तो इमेजिन योर थॉट्स एंड वर्ड्स आर बीइंग लाइक अ रॉकेट. शब्दों का कोई वैल्यू नहीं है अगर उसमें हम लोग फीलिंग्स जो कि एक फ्यूल की तरह है उसको अगर हम उसमें नहीं डालते हैं. उसमें कोई पावर नहीं है. तो हम लोग के थॉट्स एंड वर्ड्स में कोई पावर नहीं है. आप कितनों को देखे होंगे जब वो गुस्सा होते हैं ना, वो थर-थर मतलब शिवर करते हैं इन एंगर. नाउ दैट इज अ वेरी ग्रेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग. उस मोमेंट में वो जैसा बोलते करते हैं ना, क्योंकि यूनिवर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स ओनली, राइट. सो अगर हम लोग उस समय जो स्ट्रॉन्ग एमिट करते हैं फीलिंग्स, वो हो भी जाता है. इसीलिए बोलते हैं ना गुस्से में इंसान खुद का नुकसान करता है, किसी और का नहीं. इट्स अ दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग. तो अब हम लोग को उसको शिफ्ट करना है, चेंज करना है कि हम लोग प्यार भी क्या उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कर सकते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स भी क्या हम लोग उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ दे सकते हैं. बिकॉज आवर फीलिंग्स आर द पावर ऑफ आवर थॉट्स एंड वर्ड्स. किस फीलिंग के साथ बोल रहे हैं. तो लेट्स सी हम लोग अपने चाहे रिलेशनशिप में, किस रिलेशनशिप में हम लोग का अगर कोई अच्छा नहीं चल रहा है, इसका मतलब हम लोग ने वहां पे फीलिंग्स दी ही नहीं है. देयर फीलिंग्स आर लैकिंग इन दैट रिलेशनशिप. Yeah, please continue, Jyoti. If you think, I can't stand my boss, that thought is expressing a strong negative feeling you have about your boss, and you are giving out that negative feelings. As a consequence, your relationship with your boss will continue to get worse. If you think, I work with some fabulous people in my job, those words are expressing the positive feeling you have about the people you work with, and you are giving out that positive feeling. As a consequence, your relationship with your work colleagues will continue to get better. Yes, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए दोनों एग्जाम्पल. अगर आप ऐसा फीलिंग्स रखते हैं, बोलते हैं आई कांट स्टैंड माय बॉस, आप उनके बारे में सबको बुराई करते जा रहे हैं, ये कैसा फीलिंग है? एक नेगेटिव फीलिंग है. वो एक नेगेटिव फीलिंग है, राइट. तो हम लोग जितना देंगे बॉस का हो, अगर नेगेटिव फीलिंग देंगे, वी आर गिविंग आउट ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स. As a consequence, your relationship with your boss will continue to get worse. वो क्या होगा, डे टू डे वो हम लोग को लगता है नहीं जा रहा है, लेकिन वो फीलिंग्स वहां तक जा रही है, राइट. और हम लोग को आप देखेंगे आज कुछ आपको बोले बॉस, कल आपको कुछ बोला है, फिर वो कुछ बोले हैं, तो वो खराब पे खराब होते ही चला जाएगा वो रिलेशनशिप. और वही अगर हम लोग उनके बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं, वो नहीं भी कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे अरे वो इतना बुरा किया तो मैं क्यों ना बोलूं. जब वो अच्छा कर रहे थे इतने दिन, तब क्या आप अच्छाई के बारे में बात कर रहे थे, किसी को बोल रहे थे? कभी नहीं किए होंगे अप्रिशिएट. लेकिन वो एक दिन अगर आपको हम लोग को कुछ बोल देते हैं, हम लोग तुरंत 10 जन को बताने लगते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ. सो व्हाटएवर फीलिंग्स एंड थॉट्स वी आर गिविंग, हम लोग को वही हम लोग के पास
लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही वापस हम लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं, और वो हम लोग बोलते हैं ना एक के बाद एक देखो खराब होता ही जा रहा है, एंड वो रिलेशनशिप कभी कभी इतना खराब हो जाता है कि हम लोग मतलब उससे निराश हो जाते हैं, एंड वी कांट रिस्टोर इट, राइट। तो हम लोग को हमेशा चेक करते रहना है कि हम लोग का फीलिंग क्या है, और अगर हम लोग किसी के बारे में, जैसे आई वर्क विद सम फैबुलस पीपल, अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि और अपना पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं, तो हम लोग के पास पॉजिटिव ही फीडबैक आएगा, और उस कोलीग के साथ, उस पर्सन के साथ, ये तो हम लोग मैजिक में भी पढ़ चुके हैं, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते ही जाएंगे, बेहतर से बेहतरीन होते जाएगा, गुड बेटर बेस्ट, एंड बैड वर्स एंड वर्स्ट, दोनों फीलिंग्स ऐसे जाते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अभी फीलिंग्स चार्ट आएगी इस चैप्टर में, उससे हम लोग को समझ में और भी ज्यादा बेटर आएगा। यस यस ज्योति जी। The emotions must be called upon to give feeling to the thought, so it will take form. Charles Haanel, 1866-1949, New Thought author. Yeah. Good so and emotions must be called upon to give feeling to the thoughts, so it will take form. मतलब हम लोग को इमोशन और फीलिंग्स, ये हम लोग को अपने थॉट में जो भी हम लोग सोच रहे हैं उसमें कौन सा फीलिंग आ रहा है, हम लोग का दोनों फीलिंग्स आ सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आज आपकी मदर इन लॉ है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, कौन सा इमोशन आप दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वी विल गेट व्हाट वी आर गिविंग। तो ये हम लोग को चेक करते रहना है, इमोशन मस्ट बी कॉल्ड अपॉन, हम लोग को हमेशा उसको चेक करना है कौन सा फीलिंग हम लोग उस थॉट को दे रहे हैं, एंड देन इट स्टार्ट टेकिंग द फॉर्म, और वैसे ही हम लोग का लाइफ होते जाता है और बनते जाता है, राइट। good and bad feelings. Like everything else in life, your feelings can be either positive or negative. You have good feelings or bad feelings. All good feelings come from love, and all negative feelings come from a lack of love. The better you feel like when you feel joyful, the more love you give out, and the more love you give, the more you receive. The So ये worse तो you हम लोग feel, पढ़ ही चुके हैं कि दुनिया डुअलिटी की दुनिया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अंधेरा और उजाला, राइट, हेट एंड लव। अगर आप देखेंगे, आई हैव कम अक्रॉस दिस, अगर हेट में 4 लेटर्स है, हेट का ऑपोजिट क्या है, लव, उसमें भी 4 लेटर्स है। वैसे ही अगर लाइन मतलब झूठ बोलना, उसमें अगर 5 लेटर्स है, आप देखो ट्रुथ में भी 5 लेटर्स है। सेम वे ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, एंगर में अगर 5 लेटर्स है तो हैप्पी में भी 5 लेटर्स है, राइट। राइट में RIGHT, उसमें 5 लेटर्स है, तो रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, उसका ऑपोजिट, उसमें भी 5 लेटर्स है। हर्ट, HURT, इफ यू आर हर्ट इट हैज 4 लेटर्स, उसका हील, HEAL, उसमें भी 4 लेटर्स है। तो ये डुअलिटी की दुनिया है, वैसे ही ये तो खैर ऐसे ही है, लव हेट सब वैसा ही है। सो दोनों चीज में देखिए उतने ही हैं, हमें हमेशा चॉइस दिया हुआ है कि हम अपने लाइफ में किसको ज्यादा वजूद देते हैं, किसको ज्यादा पावर देते हैं, किसको ज्यादा महत्व देते हैं, किसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो वही हमारे लाइफ में डुल डुल के आएगा। अगर हम लोग अपना ध्यान हेट्रेड में, बुराई में, हर्ट में, एंगर में देंगे, डुल डुल के वो भी डुल डुल के आएगा। तो ये चॉइस हमारे पास है, हमें अपने लाइफ के लिए क्या चूज करना है। तो ये डुअलिटी की दुनिया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, गुड एंड बैड। सो लेट्स सी। सो द बेटर यू, नहीं हम लोग यहाँ पे ना, लाइक एवरीथिंग एल्स योर फीलिंग्स कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटर यू फील लाइक व्हेन यू फील जॉयफुल, लव यू गिव आउट। आप अगर खुश होते हो, अच्छा फील करते हो, तो आप देखो सब चीज में सबको प्यार ही प्यार देते हो, आपको खुद से भी प्यार आता है, बाकी सब चीज में भी, बाकी लोगों से भी प्यार आता है। लेकिन अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आपको सब में गुस्सा, बुराई यही नजर आने लगता है। एंड मोर लव यू गिव, मोर यू रिसीव। आप किसी को ऐसा देखिए प्यार दे रहे हो और सामने से नफरत ही नफरत आ रहा है, बहुत कम होगा। कहीं ना कहीं आपने, अगर वो अच्छा नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं उनकी बुराई की है, तभी आपके पास भी बुराई आ रही है। यस सर। the worse you feel, like when you feel despair, the more negativity you give out, and the more negativity you give, the more negativity you receive back in life. The reason you feel so bad with negative feelings is because love is the positive force of life, and negative feelings don't have love in them. The better you feel, the better life gets. The worse you feel, the worse life gets, until you change how you feel. Yeah. So
द वर्स यू फील, लाइक जब हम लोग बहुत ही, हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है डिस्पेयर का, मतलब बहुत हताश है, बहुत ही ज्यादा गम में, निराश। हाँ निराश है। सो द मोर नेगेटिविटी यू गिव आउट, जब हम लोग निराश होते हैं तो क्या हम लोग अच्छा काम, प्यार, ये सब कर सकते हैं, खुशी, खुश माहौल दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नहीं। एंड द मोर नेगेटिविटी यू गिव, उसके बाद क्या होता है, एक के बाद एक हर चीज में हम लोग को सब कुछ खराब ही लगने लगता है, बुरा ही लगने लगता है। मेरे साथ ही, मेरे लाइफ में ऐसे लोग क्यों हैं, मेरा सिचुएशन इतना खराब क्यों है, पता नहीं, बाकी सबसे हम लोग कंपेयर करने लगते हैं, और हम लोग को लगता है पता नहीं, हम लोग मतलब एक तो विक्टिम होते हैं ना, विक्टिम विक्टिम फील करते हैं कि मैं तो सबसे अबला नारी। यस, सो द रीजन यू फील बैड विथ नेगेटिव फीलिंग इज बिकॉज उसमें हम लोग प्यार ही नहीं डाल रहे हैं, हम लोग उसको दूसरे नजरिए से देख ही नहीं रहे। लव इज द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लाइफ, उसमें डाल के तो देखिए। एंड नेगेटिव फीलिंग्स डोंट हैव लव इन देम, ऑब्वियसली डजंट हैव लव। सो द बेटर यू फील, जितना हम लोग अभी अपने लाइफ में अच्छा फील करेंगे, उतनी ही मैं बोलती हूँ अपना फ्यूचर हर पल बनता जा रहा है ना। जो बीत गया सो, जो बात गई बीत गई, यही बोलते रहना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, लेट गो एटीट्यूड जरूर डेवलप करना चाहिए। लेट इट गो, इट हैज हैपेंड, कल वापस लौट के नहीं आएगा, बट आने वाला कल हमारे हाथ में है, और उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? अभी अपने फीलिंग को चेंज कर लीजिए। कौन अभी टायर्ड फील कर रहा है, स्लीपी फील कर रहा है, और सोच रहा है इसके बाद शाम को यार 5 बजे ये काम करना है, बहुत जन के फीलिंग्स अभी हो रहे होंगे, बहुत चीज दिमाग में थॉट्स वगैरह आ रहे होंगे, इजंट इट राइट? तो उसको अभी हम लोग चेंज करना है। हाउ कैन यू चेंज? बी इन द मोमेंट राइट नाउ। जो काम अभी कर रहे हैं, पहले उसको तो एंजॉय करते हैं। अगर अभी इस मोमेंट को एंजॉय करेंगे, पॉजिटिव फीलिंग देगी, अच्छे से लगेगी, तो आने वाला टाइम अपने आप पॉजिटिव होगा, राइट? और अभी हम लोग अगर चिंता में रहेंगे, तो आने वाला वक्त भी चिंता में ही बीतेगा, उसका कोई एंड नहीं है। वो एक के बाद एक कुछ ना कुछ सिचुएशन आएगी ही आएगी, until you change how you feel. It's very clearly stated, the worse you feel, the worse life gets until you change. तो ये चेंज किसके हाथ में है? किसी और के हाथ में नहीं है, ये हमारे ही हाथ में है। हम जनरली क्या करते हैं, हम लोग वेट करते हैं कि कोई सामने वाला, कोई घर वाला, कोई सिचुएशन हमारी फीलिंग्स को चेंज करे, है ना। हम लोग सोचते हैं कोई तो ऐसा करे जो मुझे खुश कर दे, खुश मतलब अच्छा फीलिंग में दे दे, प्यार दे दे, बट इट इज इन आवर हैंड। अगर हम लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे आज खुश रहना, अच्छे से रहना, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूं, अपना आप जिसमें अगर आपको कुकिंग पसंद नहीं भी है, तो भी मैं उसको कैसे उसमें प्यार डाल सकती हूँ, कैसे और मुझे करना पड़ रहा है। ऐसा है, आई डोंट लाइक कुकिंग, लेकिन जब करना पड़ता है, आई पुट ऑन द म्यूजिक और बनाती हूँ, ठीक है। ये सोचती हूँ कि वाह मेरी बेटी को शायद ये बहुत अच्छा लगेगा जो मैं बना रही हूँ, खा के मजा आएगा, लेट्स ट्राई। उसमें या तो मैं प्यार डाल सकती हूँ, या मैं वो सोच सकती हूँ यार जब देखो ये बनाते रहो, इन लोगों को वैसे भी कुछ पसंद तो आना नहीं है, बच्चे को कुछ भी बना लो, बना के चलो दे देते हैं, जैसा खाएगी तो खाएगी, देखा जाए। तो उसमें क्या हम लोग प्यार डाल रहे हैं कि क्या डाल रहे हैं उस खाने में भी, उस खाने में भी, और उन लोग का थॉट क्या हो रहा है। उसके बाद तो अगर खाना सर्व कर दिया और बच्चे ने कंप्लेन किया था, मैंने तो पहले ही बोला था उसको पसंद तो आएगा ही नहीं, तो मैंने तो बनाया ही उस थॉट के साथ था। तो जिस टाइम बनाया उस टाइम जो फीलिंग था, और फ्यूचर में जब उसको सर्व किया, वही वही वापस आ रहा है, आता है ना, तो वो फ्यूचर बनता जा रहा है एवरी मोमेंट। तो इट इज इन आवर हैंड, ऑलवेज ऑलवेज व्हेन यू डिसाइड। नाउ दिस इज द फीलिंग चार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। हम लोग ने तो इसका जैसे प्रिंट आउट निकाल के मैंने अपने मिरर पे अपने रूम में लगा लिया है। चलते फिरते एवरी मोमेंट, यू नो, आप हमेशा पॉज करो और चेक करो कि अभी मेरी फीलिंग क्या है। आप देख सकते हो बीच में एक लाइन है, राइट, कैन यू सी द लाइन? तो इसके नीचे के ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे नेगेटिव फीलिंग्स वाले हैं। बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर एंड फियर। और इसके नीचे आप देखिए पूरा अंधेरा और काला है, यू नो, आप उसको हेल भी बोल सकते हैं और उसको आप अंधेरा भी बोल सकते हैं। और ये जो थिन लाइन है, इसके ऊपर के ये जितने फीलिंग्स हैं, ये पॉजिटिव वाले हैं, starting from satisfaction, hope, enthusiasm, excitement, passion, joy, gratitude, and the topmost feeling is love, what we are talking about in this book. मैजिक बुक जिसने किया था, उसमें हम लोग ने बहुत ग्रेटिट्यूड के बारे में बात किया है, राइट? सो ग्रेटिट्यूड के बाद क्या आता है? लव। अगर हम लोग किसी चीज को रोज रोज बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे प्यार तो हो ही जाएगा ना, उसमें प्यार अपने आप आ जाएगा। तो ग्रेटिट्यूड के बाद लव ही आता है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर हेवन बोल सकते हो, रोशनी बोल सकते हो, सन बोल सकते हो, द मोस्ट पावरफुल लाइट, एंड द फीलिंग इज, द मोस्ट पावरफुल फीलिंग इज लव। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं और अपने लाइफ में हम लोग
प्रेम से कैसे हम अपने लाइफ को, एक वर्ड था ना इसमें, लबालब कर सकते हैं, भर सकते हैं कि वो। और जब हम लोग, जैसे अगर एक कप है उसमें हम लोग डालते जाएंगे तो वो डुल डुल के और भी इधर उधर चला जाता है ना। तो अगर हम लोग अपने आप को प्यार से भर देंगे तो वो अपने आप डुल डुल के अगल बगल आपके एनवायरमेंट में सब लोगों के पास पहुंचेगा। होता है ना, कोई कोई लोग आते हैं तो हम लोग को वैसा वाइब्स मिलता है, इसमें कितना लगता है शी इज सो अफेक्शनेट, कितना प्यार भरा है, ये सबको कितना प्यार देती है क्योंकि उनमें भरा हुआ है प्यार। और किसी किसी से हम लोग को वो नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं, ऐसे लगता है ना हम लोग वी डोंट वांट टू स्टे अराउंड दोज पीपल, क्योंकि उनके पास है वो, तो वो आप वो महसूस करने की चीज है, वो फीलिंग की चीज है, आपको दिखाई नहीं देगा। कैन यू एवर से आई लव यू 2 much 3 much 4 much, बच्चे बोलते हैं ना, आएगा वो मेजर ऑफ लव, राइट। सो हम लोग नाप नहीं सकते हैं इसको, प्यार ऐसी चीज है। सो एवरी टाइम पॉज इन अ डे और 2, मतलब हर दिन हर पल पॉज करिए और देखिए मेरी कौन सी फीलिंग है। अगर आप बोर भी हो रहे हो तो ये सोच लीजिए, मतलब बोर होना नेगेटिव फीलिंग कैसे है, लेकिन एक बोर्डम कैसे हमें और नेगेटिविटी में ले जाता है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आपके पास करने को कुछ नहीं है, आप बोर हो रहे हो, तो कोई कुछ भी बोलता है तो आप थोड़े इरिटेट हो जाते हो ना, इरिटेट होने लगते हैं। फिर कोई अच्छा सा सीरियल भी नहीं आ रहा, टीवी में भी कुछ नहीं आ रहा है, गाने भी अच्छे नहीं आ रहे, रेडियो पे कोई फोन भी नहीं है, किसी के पास कोई बात करने के लिए भी नहीं है, राइट। सो वो बोर्डम किस नेगेटिव थॉट को जन्म दिया, इरिटेशन को। और जब इरिटेट हो जाते हैं तो हम लोग और डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने लाइफ से। मेरे तो लाइफ में यही बचा है, चिड़चिड़ापन। और उसके बाद हम चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, हम लोग फ्यूचर में भी क्या ऐसे ही जीते जाएंगे, वरी। और फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं बाकी लोगों को, उसका लाइफ कितना अच्छा चल रहा है, उसके तो बस ऐश ही ऐश है, मेरा ऐसा है, कंपेयर करने लगते हैं, किसी की बुराई करने लगते हैं, उसके कारण इसके कारण मेरी लाइफ ऐसे है, हेल बची हुई है, राइट। उसके बाद हमें गुस्सा हमें भर जाता है, बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आता है। कोई कोई आप लोग देखोगे फैमिली में ऐसे मेंबर होते हैं जिनको बोलो और उनको गुस्सा आता है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों से कतराते हैं बात करने में और बोलने में। हम लोग को लगता है ना भाई इनसे तो डिस्टेंस मेंटेन करो, कब भड़क जाएगी पता ही नहीं, होता है ना। सो आप सोचो कौन सा एक तो नेगेटिव थॉट से स्टार्ट हुआ था, बोर्डम से, और वो बोर्डम ने कितने नेगेटिव फीलिंग को जन्म दे दिया। और ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे, हेट्रेड, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर, फियर। जब इस लेवल में आ जाते हैं तो जनरली लोग अपने लाइफ से गिव अप कर देते हैं एंड थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। सो हमें बोर्डम जब महसूस हो ना तो हम लोग को समझ जाना चाहिए, अरे 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 मैं तो नीचे लेवल में जा रही हूँ। उस समय क्या करना है, कुछ ऐसा काम करना है, अपने थॉट को चेंज करना है, अपने फीलिंग्स को चेंज करना है। लाइक इफ यू लव लिसनिंग टू गुड सॉन्ग्स, प्लीज उस समय ट्रैजिक सॉन्ग्स मत सुनिएगा, नहीं तो पता चलेगा और सैड होते चले जा रहे हैं, राइट। तो सम हैप्पी सॉन्ग, जो सॉन्ग्स अच्छा जिंदा दिल वाला हो, जो पिक पर हो अच्छा, वो लगा लीजिए। आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ दिखा रहा है, जो आपको पसंद है वो देखिए। किसी अच्छे फ्रेंड से अच्छी बातें करेंगे, उस समय हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो क्या पड़ेगा, सामने वाला भी कंप्लेन किया, हाँ यार तेरे लाइफ में तो सच में ऐसे ऐसे लोग हैं, तुम तो सच्ची बहुत ही अनलकी हो, आप और क्या हुए, और नेगेटिव चले। तो ऐसे लोगों को कॉल मत करिएगा, राइट। सो ऐसे लोगों से बात कीजिए जिससे बात करके मजा आए। तो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल में अपने आप को पुल अप करना है। फिर एक सेटिस्फैक्शन से आपका होप, इससे क्या जन्म देगा, होप। आपकी लाइफ में एक होप आ जाएगा। आप अगर अपनी लाइफ से थोड़ी सी भी सेटिस्फाइड है तो एक होप आएगा कि चलो मैं और अच्छा क्या कर सकती हूँ, और क्या चीज में अच्छी खुशी मिल सकती है, आप ढूंढने की कोशिश करोगे। और फिर आप एक्साइटेड भी होगे और एंथुजियाज्म भी रहेगा आप में कि मैं आज चलो आज ये पेंटिंग करूँ, आज मैं एक नया डिश ट्राई करती हूँ, आज एक आइसक्रीम बनाने का सोचती हूँ। अगर आपको कुकिंग में है या बेकिंग में है, या किसी फ्रेंड से बात ही करते चलो मिलते हैं कॉफी पे, यू नो। और उसके बाद पैशन, जॉय, उनसे बात किए तो और भी अच्छा लगा। घर आके आप अपने बच्चे को और गले लगाते हो और प्यार करते हो और शेयरिंग क्या करते हो, अच्छी बातें। आज हम लोग फ्रेंड्स लोग मिले थे, पता क्या क्या हुआ, आज हम लोग ये किए, और मन करता है लाइफ में कुछ अच्छा करें, है ना। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एंड देन यू थैंक गॉड, ग्रेटिट्यूड अपने आप आता है, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच लवली फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सो मच। और उसके बाद हम लोग का प्रेम भी आ जाता है। सो राइट, सो दिस इज अ वेरी फाइन लाइन। ये फीलिंग्स चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो हम लोग को टाइम टू टाइम वी हैव टू कीप चेकिंग आवर फीलिंग्स। और ये किसी और के हाथ में अपना रिमोट मत दीजिए कि वो दबाया, कुछ बोला और हम लोग भड़क गए और गुस्सा हो गए। इसका मतलब तो आपका फीलिंग किसी और के हाथ में है। इट इज इन आवर हैंड। साइड हट जाइए और लेट अस डू व्हाट वी लव डूइंग। उसके बारे में और भी बात करेंगे। यस ज्योति जी। When you feel good, your thoughts are automatically good too. You cannot feel good and have negative thoughts at the same time.
Likewise, it's impossible for you to feel bad and have good thoughts at the same time. How you feel is an exact reflection, a precise measure to the finest degree of what you are giving out in any moment. When you feel good, you don't have to be concerned about anything else because your thoughts, words, and action will be good. Simply by feeling good, you are guaranteed to be giving love, and all of that love must come back to you. या सो देखिए बार बार इन्होंने मतलब रॉन्डा बर्न एक ही चीज बार बार बोल रही है, आपको लग रहा होगा बार बार, लेकिन ये क्यों बता रही है कि फीलिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट। अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं, अपना लाइफ अच्छा करना है, तो फीलिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज यूनिवर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर फीलिंग्स ओनली। दैट्स द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ मैनिफेस्टिंग एंड मोस्ट पावरफुल वे ऑफ मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो व्हेन यू फील गुड, हम लोग अगर आप अभी अच्छा फील कर रहे हैं, गुड फीलिंग जोन में है, तो क्या नेगेटिव थॉट्स आएंगे? नहीं आते हैं। जब आप बहुत ही खुश मिजाज में हो, अच्छे थॉट्स में हो, तो उस समय कोई नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है। तो दोनों एक साथ वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव वो भी मतलब इस लाइफ में वो भी होंगे, लेकिन आप किसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, आप किसको ज्यादा पावर दे रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सो यू कैन नॉट फील गुड एंड हैव नेगेटिव थॉट्स एट द सेम टाइम। इट्स इम्पॉसिबल टू फील बैड एंड हैव गुड थॉट्स। और आप जब अच्छे मूड में नहीं हो, तब आपके क्या गुड थॉट्स आएंगे? आएंगे नहीं। उसके बाद तो यही लगेगा कि ये भी अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में कोई भी अच्छा नहीं है, मेरा लाइफ अच्छा ही नहीं चल रहा है, नथिंग इज हैपनिंग इन माई लाइफ, बहुत ही मतलब डेड लाइफ है मेरी, तो कोई लाइफ ही नहीं है। सो इट इज ऑल दैट, एंड हाउ यू फील इज एन एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन to the finest degree what you're giving out at any moment। अगर आप सबको ही हम लोग अपने अपने लाइफ में अभी देखेंगे, अगर आपको लग रहा है अगर आपका कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब वहां पे लैक ऑफ लव है, वहां पे लैक ऑफ पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव है। अगर कोई मनी एरिया में अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग कुछ ना कुछ वहां पे हमारी तरफ से कोई कमी हो रही है, राइट। सो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर गिविंग। अगर हम लोग पैसे को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो एरिया हमारा अच्छा नहीं चल रहा है। तो जैसे हमारी लाइफ है, किसी और के वजह से नहीं है, जो भी है वो हमारे थॉट्स की वजह से है, what we are going through right now। so your feel is an exact reflection मतलब प्रतिबिंब होता है हिंदी में, right? exact reflection, a precise measure to the finest degree, मतलब हर चीज नाप तौल के जिसको बोलते हैं ना, जितना प्यार देंगे उतना मिलेगा। अगर बहुत प्यार मिल रहा है तो इसका मतलब आप उतना प्यार दे रहे हो, राइट। और अगर हम लोग अगर उतना प्यार नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग को उतना मिल भी नहीं रहा है। तो जो भी आपके लाइफ में अभी है, तो इसका मतलब आप दे नहीं रहे उतना। सो फीलिंग गुड, यू आर गारंटी। देखिए यहाँ रॉन्डा बर्न गारंटी देती है। गारंटी तो आजकल कोई भी प्रोडक्ट में भी नहीं मिलता है इतना, पर यहाँ रॉन्डा बर्न हर चैप्टर में, मैजिक में भी उन्होंने बहुत जगह गारंटी दी है, टू बी गिविंग लव एंड ऑल ऑफ दैट लव मस्ट कम बैक टू यू। अगर हम लोग जितना प्यार देंगे, तो गारंटी है उतना प्यार आपके पास आज कल परसों आएगा ही आएगा, वापस उसी मेजर में आएगा, और उससे बढ़कर भी आ सकता है। यस yes, Jyoti ji, good means good। Most people understand how it feels to feel good or really bad, but don't realize they are living with negative feelings a lot of the time. People think that feeling bad means feeling extreme negativity, such as sadness, grief, anger, or fear. And while feeling bad does include all those feelings, negative feelings come in many degrees. If you यहाँ पे देखिए, ये आप लोग लेफ्ट साइड में जो चार्ट है ना, इसको रेफर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ऐसा होता है, ओके टाइप का भी फील करते हैं, आएगा इसके बाद। टू सो हाउ इट फील्स टू फील गुड और रियली बैड डजंट रियलाइज। अगर बोर हो रहे तो लगता है, हम लोग सोचते होंगे ना, अगर हम लोग बोर हो रहे हैं तो हम लोग कोई खराब थोड़े फील कर रहे हैं, ओके टाइप का है। इरिटेशन हो रहे तो ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है लाइफ में, इरिटेट हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, चलता है यार, किसी का कारण हो सकता है, बट नहीं, हम लोग को पता ही नहीं होता है। ये हम लोग के नेगेटिव फीलिंग है लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इस एक नेगेटिव फीलिंग के साथ बहुत बार अलग अलग नेगेटिविटी, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, सब हम लोग उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो फीलिंग बैड मीन्स हम लोग सोचते हैं जब बहुत गुस्सा है, घर में जब घमासान युद्ध हो, आर्ग्यूमेंट हो, वही एक नेगेटिव एनवायरमेंट सिचुएशन होता है। नहीं, उसके पहले वाले के उसको उसकी जंग कहाँ से हुई थी, राइट। वो थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते वो बिटरनेस रिलेशनशिप में भी बढ़ता जाता है ना। अगर हम लोग उसको पहले से उसको अच्छे से, जैसे एक तो खरोच आई है, उसमें हम लोग पहले ही मरहम पट्टी करके ठीक कर दिया, और एक घाव को हम लोग उसको भरे ही नहीं और उसको खुला ऐसे ही छोड़ दिए, तो वो तो और गहरा होता जाएगा ना।
तो हम लोग को शुरू में उसको भर देना है। तो वही है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग जब तक उसको फील नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा जब एक्सट्रीम हो जाता है तब लगता है हाँ अब नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग है, बट ऐसा नहीं है, उसके पहले वाले भी हैं। यस। If you feel okay, most of the time, you may think that feeling okay is a positive feeling because you don't feel really bad. If you have been feeling really bad and you now feel okay, then most certainly feeling okay is far better than feeling really bad. But feeling okay most of the time is a negative feeling because feeling okay is not feeling good. Feeling good means feeling good. Good feeling means you are happy, joyful, excited, enthusiastic, or passionate. When you are feeling okay, average, or you are not really feeling anything much at all, then your life will be okay, average, or not much at all. This is not a good life. Good feelings means you feel really good, and feeling really good is what brings a really good life. The Yes. measure of love is love without measure. हाँ, Saint Bernard Clairfort. क्लेवर, सो क्रिश्चियन मॉन्क एंड मिस्टिक। Hmm. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग अभी तक बहुत जन है जो अगर बोलते हैं ना लाइफ कैसी चल रही है, बहुत जन बोलते होंगे ना हाँ ठीक है ओके। अभी तक यही सोच रहे थे ओके तो अच्छा ही है, खराब से तो बेटर ही है। अच्छा भी नहीं चल रहा है, खराब भी नहीं चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। हिंदी में बोल देते ना हाँ बस ठीक ठाक चल रहा है, हाँ ओके ओके टाइप का चल रहा है। तो अब हम लोग को इस बुक से क्या पता चला है कि ओके एक अच्छा फीलिंग नहीं है। अगर आप ओके में सेटिस्फाइड हो, अच्छा फीलिंग दे रहे हो एंड यू आर एवरी टाइम यू आर सेइंग ओके ओके, तो आपका लाइफ भी ओके ओके ही रहेगा हमारा। आप खुश हो इस ओके लाइफ से, ये भी चॉइस हमारे पास है। आप बोलते नहीं मेरे को तो भाई अच्छी लाइफ चाहिए, गुड लाइफ चाहिए, बेहतरीन लाइफ चाहिए, तो वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड। दिस ओके इज ऑल्सो अ नेगेटिव, क्योंकि ओके ओके बोलते बोलते ही हम लोग नीचे गिर जाते हैं। हर कोई आपको ओके ओके ही समझता रहता है, ओके ओके हम लोग को लाइफ में हर चीज ओके ही मिलता है ना। लाइफ में हर टाइप की चीजें हैं, हम लोग को हर चीज ओके ओके वाला मिलेगा, क्योंकि हम लोग ओके से ही खुश हैं। बिकॉज फीलिंग ओके इज नॉट फीलिंग गुड, एटलीस्ट हमें तो अच्छा महसूस करना है, खुश महसूस करना है। सो फीलिंग गुड मीन्स फीलिंग गुड, हमें अच्छा फील करने के लिए अच्छा ही वैसा अपना वाइब्स रखना है, ताकि हम लोग के पास बहुत ही हैप्पी जॉयफुल और हम लोग की लाइफ बहुत ही पैशन से भरा हुआ एक्साइटेड हो, वैसा लाइफ चाहते हैं ना हम लोग की लाइफ में। और भी बहुत कुछ चाहते हैं हम लोग, ओके टाइप की लाइफ थोड़े चाहते हैं। सो व्हेन यू आर फीलिंग ओके एवरेज और यू आर नॉट रियली फीलिंग एनीथिंग, then your life will be also okay, average or not much at all. So क्या हम लोग satisfied हैं अपने average and okay life से? Start asking these questions to yourself. अपने आप से ये प्रश्न पूछना हम लोग को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना जनरल लाइफ में हम लोग दूसरों पे बहुत डिपेंड होने लगते हैं कि कोई और हमारी लाइफ को अच्छा करेगा, हैप्पी करेगा, एक्साइटेड करेगा। बट नो 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 नो, इट इज ऑल इन आवर हैंड्स, राइट? सो हाउ टू फ्यूल अप योर ओन फीलिंग्स. So that's it. It's not a good life. Good feelings means you really feel good, and feeling really good is what brings a good life. And हम लोग I'm sure सब हम लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो, है ना? So the measure of love is love without measure. So क्या हम लोग प्यार को नाप तोल कर सकते हैं? नाप सकते हैं कि ये मुझसे 100 वाला प्यार करती है, ये मुझसे 50 वाला ही प्यार करती है। वो मेरा एक परसेप्शन हुआ, लेकिन हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। 2 बच्चे हैं, इससे मैं इतना प्यार करती हूँ, इससे मैं कम प्यार करती हूँ, इससे बेसी प्यार करती हूँ। अब फीलिंग्स जैसा थोड़ा हो सकता है कम बेसी, किसी से ज्यादा किसी से कम, लेकिन अब नाप तोल उतना प्यार तो प्यार ही है। या बोलते हैं ना आई लव यू सो मच, और आजकल तो एक नया हो गया है आई लव यू टू द मून एंड बैक, बोलते हैं ना क्योंकि उसको कोई मेजर ही नहीं कर पाएगा ना, तो इसीलिए बोल देते हैं आई लव यू टू द मून एंड बैक, मतलब उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। So yeah, so measure of love is love without measure. So such a beautiful line, huh? और बच्चे होते तो पहले बोलते, कोई बोलता था टू मच तो हम लोग बोलते थे ना आई लव यू 3 मच 4 मच 5 मच 100 मच. So we cannot measure love. Yeah. Yes, Jyoti. When you are feeling joyful, you are giving joy, and you will receive back joyful experiences, joyful situations, and joyful people wherever you go. From the smallest experience of your favorite song playing on the radio to bigger experience of receiving a pay raise, all of the circumstances you experience are the law of attraction responding to your feeling of joy. When you are feeling irritated,
You are giving irritation and you will receive back irritating experiences, irritating situations, and irritating people wherever you go. From the small irritation of a mosquito to the bigger irritation of your car breaking down. All of these experiences are the law of attraction responding to your irritation. हाँ, तो देखिए अगर हम लोग अभी तक अपने लाइफ में उतना गौर से शायद देखे ही नहीं है, हम लोग देखते ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और ये हुआ हमारे साथ तो क्यों हुआ, हम क्या किए। थोड़ा सा पीछे जाके अगर हम लोग देखेंगे ना तो हम लोग को अपनी ही गलती कितनी बार नजर आ जाती है। सो व्हेन यू आर फीलिंग जॉयफुल, अगर हम लोग अभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही खुश हैं, तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं अच्छा जॉयफुल एक्सपीरियंस उस समय फील किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, तो बाद में भी वैसे ही वैसे सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, लोग हमारी लाइफ में आते ही जाते हैं, राइट। जहाँ जाते हैं वही हम लोग को बहुत ही खुशी मिलती है। सो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग प्लेइंग ऑन द रेडियो, जब हम लोग घर से, अगर कितनी बार ऐसा होता है, एट टाइम्स इट हैज हैपेंड विथ मी कि मैं घर से निकली हूँ, आई ड्राइव ऑन माई ओन, तो जब घर से निकलती हूँ अगर इरिटेटेड, गुस्से के मूड में, जैसे स्टाफ को कुछ बोल के या बच्चे से कुछ बाता बाती होके निकलते हैं, तो पता चलता है मेरे को ना, लोग जितनी भी गाड़ी है ना, मेरे को तो ऑटो वाला, बाइक वाला चलाना ही नहीं आता है, मुझे सब पे इरिटेशन होता है, सब पे गुस्सा आता है। फिर उस दिन मेरे को तो ट्रैफिक भी मिल जाता है, सिग्नल भी मिलता है, मतलब आज ही मिलना था इसको, गाना चलाओ कि थोड़ा मूड, अब मूड शिफ्टर्स पता है, तो माय फेवरेट इज लाइक सॉन्ग, तो मेरे पास वो रेडियो में रेडियो चलाती हूँ तो पता चलता है कोई भी अच्छा सॉन्ग भी नहीं आ रहा है। तो इट एक्चुअली हैपेंस, जैसा हम लोग जाते हैं हम लोग को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों को आजकल रोड क्रॉस करना नहीं आता है, फुटपाथ बनाया किस लिए, फुटपाथ पे चलते ही नहीं है, मेरे को ही हॉर्न करना पड़ता है। ऑल दिस इरिटेशन वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, एंड वन थॉट वेयर इट स्टार्टेड एट होम, राइट, एंड इट कंटिन्यूड। सो वो सब हमारे हाथ में है, फ्रॉम द स्मॉल इरिटेशन ऑफ अ मस्कीटो टू द बिगर इरिटेशन ऑफ योर कार ब्रेकिंग। मस्कीटो दैट्स अ फनी एग्जांपल। हाँ, मस्कीटो भी काट लेता है तो हम लोग क्या इरिटेट हो जाते हैं, कितना मच्छर है, हम लोग सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, आई थिंक केएमसी तक पहुंच जाएंगे उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कि कोई कुछ बिल्डिंग का ध्यान ही नहीं लेता है, कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, राइट। सो इट इज ऑल लाइक जो एक तो वेव की तरह चलता रहता है, एक के बाद बोलते हैं ना आज का दिनचर्या ही अच्छा नहीं था, एक के बाद एक मेरे साथ बुरा ही होते जा रहा है, और जब अच्छा होता है तो लगता है वाह, आपको ऐसे फ्रेंड मिल जाएंगे, अच्छा फील करेंगे, आपको हर चीज में अच्छा लगेगा। तब अगर मैं अच्छे मूड से निकलती हूँ ना, मुझे किसी पे भी इरिटेशन नहीं होता है। आजकल मैं अलग वे में सोचती हूँ, हम ना, हाँ इसको बेचारे को जल्दी होगी, ये तो बाइक पे जा रहा है, उसे कहीं अपने ऑफिस में पहुंचना है, मेरे जो क्या है, मैं तो कार में बैठी हूँ, गर्मी है तो वो बेचारा, उसके पास तो एसी भी नहीं है, मैं तो एसी में अंदर बैठी हूँ। दीज आर द थॉट्स विच वी कैन इमीडिएटली चेंज। किसी पे गुस्सा आ भी रहा होता है ना, इरिटेशन आता है, हम लोग अगर उसी समय पॉज करके और अपनी थॉट को चेंज करें तो हमारी फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगे। तो अभी मेरा बहुत सारा बैंक का चक्कर कट रहा है, मैं देखती हूँ इतना लाइन, लोग बोलते हैं एक एक दो दो घंटा खड़े हैं, और मेरा कितनी बार काम मेरा बैंक में यूं हो जाता है, एंड मैं इतना, मतलब मुझे लगता है मैं कितना उनको ग्रेटिट्यूड देते रहती हूँ, थैंक यू बोलते रहती हूँ फॉर डूइंग माई वर्क, थैंक यू फॉर डूइंग माई वर्क आउट ऑफ वे। जो उनका डिपार्टमेंट नहीं है, दे आर कमिंग एंड हेल्पिंग। अभी तो लास्ट टाइम जब मैं बैंक गई थी तो जनरली वी ऑल आर वेयरिंग मास्क, तो ये मोदी जी का कोई योजना आया होगा सर्टेन एज ग्रुप के लिए, बोलते मैम इफ यू डोंट माइंड कैन वी आस्क यू योर एज। जनरली वुमेन से एज नहीं पूछते हैं, हम देखो पूछे, हमने, मेरे को 50 के, हमने, आई टोल्ड देम माय एज, बोले डोंट माइंड बट एक तो योजना है। देन ही सेड ओह नो यू डोंट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। तो मुझे लगा कि भैया किस कैटेगरी में, मैं बहुत बड़ी हो गई क्या? बोले नहीं 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 नहीं, आप अभी उसके लिए छोटी। हम बोले अच्छा हुआ। तो फिर बोले कि नो वी थॉट एक और, देयर आर 2 योजनास, वन इज फॉर द सीनियर सिटीजन एंड वन इज लाइक और भी छोटे लोगों के लिए। तो उन्होंने सोचा मैं उतनी छोटी हूँ, तो दे वर ट्राइंग टू ऑफर मी दैट डील। तो बोला आई होप यू डिडंट माइंड आस्किंग मी योर एज। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे इसे ये समझ में आया, आप ये तो सोचे कि मैं बहुत यंग दिख रही हूँ। देन दे स्टार्टेड लाफिंग एंड स्माइलिंग। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। बोले नहीं नहीं, आजकल एक्चुअली समझ में नहीं आया, हम लोग को लगा, नो 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 दैट्स ऑल राइट। So this is how it brought a smile on my face, on their face. तो एक थोड़ा सा हम लोग अगर अच्छे से बात करें, एक थोड़े इरिटेट हो जाते हैं तो क्या होता है, पूरा माहौल ही हम लोग का खराब हो जाता है। So it's all on us how you take it. So every good feeling unites. ये आप यहाँ से पढ़ोगे ना? हाँ जी। Every good feelings unites you with the force of love, because love is the source of all good feelings. Feeling of enthusiasm, excitement, and passion come from love. And when you feel any of them consistently, they give you a life filled with enthusiastic, exciting, and passionate things.
You can harness the power of a good feeling to the fullest by turning up its volume. To turn up the volume of a feeling, take charge of it and deliberately intensify it so you feel as good as you can. To amplify enthusiasm, revel in the feeling of enthusiasm. Milk the feeling for all that you can by feeling it intensely. For When all you that, when by feeling it intensely. Anju. when you feel passion or excitement, reveal in those feelings and intensify them by feeling them as deeply as you can. The more you amplify your good feelings, the greater the love you give. And the result you will receive back in your life will be nothing short of spectacular. Spectacular, yes. So every good feeling unites with the force of love, because love is the source of all good feelings. So ultimately गुड फीलिंग्स क्या है, एक तरह से जब गुड फीलिंग्स है, अच्छा फील करते हैं, तो हम लोग को हर चीज में प्यार ही आता है ना. सो दैट्स द फोर्स ऑफ लव. फीलिंग ऑफ एंथुजियाज्म, अगेन इट इज गोइंग बैक टू दैट चार्ट, फीलिंग्स चार्ट. एक्साइटमेंट, पैशन, ये सब किस चीज को जन्म देता है? इट ऑल कम फ्रॉम लव, है ना. एंड व्हेन यू फील एनी ऑफ देम कंसिस्टेंटली, मतलब आप हमेशा उसी जोन में रहते हो, दे गिव यू अ लाइफ फिल्ड विद दैट ओनली. हमारे लाइफ में हमेशा उत्साह रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, पैशन रहेगा, क्योंकि हम लोग उसी जोन में हैं. हम लोग हर वक्त वैसा ही फील कर रहे हैं. अब आप सोचोगे समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, हर वक्त इंसान इतना जॉयफुल मूड में रह सकता है क्या? सर्कमस्टांसेस तो होते हैं ना which puts you down, but again remember it is in our hands. सिचुएशंस वैसे आएंगे, लोग भी हमारे इर्द गिर्द वैसे आएंगे. इट इज ऑन अस कि हम लोग उसको कैसे सिचुएशन को, अब हम लोग अवेयर हो गए हैं, डील करते हैं. अगर कोई आपको कुछ बोला, आप उसको उल्टा जवाब दिए, आप वैसे ही, अगर कोई आपको इरिटेट होके बोला, गुस्से में बोला, आप गुस्से में जवाब दिए, तो क्या होगा? उसने एक बोला, आपने दो बोला, सामने वाला चार बोला. क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है क्या? सिचुएशन वर्स ही होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. आज उसने दो बोला, कल वो चार बोलेंगे, आप 8 बोलोगे. देयर इज नो एंड टू इट. डू वी वांट दैट? अब हम लोग अवेयर हो गए हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? अब से हम लोग उस पर अवेयर हो गए, तो हम लोग या तो वी हैव ऑप्शंस, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस. या तो जवाब दें, उस चीज को और सीरियस कर ले, खराब कर ले सिचुएशन, या वहां से हम लोग चुप से हट जाएं, अपने रूम में आ जाएं, अपना पसंद का गाना लगा लें, इधर से सुने, इधर से निकालें. बेस्ट इज दिस. If you can't do it, put on some song, do something, pick up your phone, talk to your friend, and धीरे 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 वो फेंट हो जाएगा. आपने उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, राइट? वही बात है ना, हम लोग उसको ज्यादा फ्यूल नहीं दिए. आपको किसको ज्यादा पावरफुल करना है? हमारे अंदर दोनों भी है, जैसे बोलते हैं ना, भेड़ भेड़िया दोनों भी है. हम लोग को किसको नर्चर करना है? जिसको ज्यादा खाना दोगे वही बलवान होता जाएगा, वही बढ़ता जाएगा. So it is all on. So you can harness the power of good feelings to the fullest. हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है. By turning up its volume. टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ अ फीलिंग, मतलब डेलिबरेटली हम लोग चाहेंगे, जैसे कि आप अपने बच्चों के बर्थडे करते हो, कितनी बार ऐसे नॉर्मल में भी एक केक मंगवाया, सब फैमिली साथ में काटे, खत्म, भैया एक तो फॉर्मेलिटी था, कर दिया. अब आप उसको स्पेशल फील कराने के लिए आप हो सकता है उनके सरप्राइज के 2-3 फ्रेंड्स को बुला लिए घर पे, उसके पसंद का डिशेस भी बना लिए, उसके लिए एक सीक्रेट गिफ्ट भी ला के रख दिया. तो आप क्या कर रहे हो? आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो ना. सो सामने वाला को जब इतना प्यार मिलता है, जब उसको सरप्राइज मिलता है, वो इतना खुश होता है, उसके फीलिंग्स वो आपके तक भी पहुंचता है और आपकी फीलिंग्स भी उसके तक पहुंचता है, राइट? सो इट इज लाइक बोथ वेज. सो यू डेलिबरेटली इंटेंसिफाई इट सो यू फील एज गुड एज यू कैन. आप उनके लिए इतना करोगे तो सामने वाले के मन में अपने आप ही आता है ना, ओ गॉड, आज मम्मा मेरे लिए ये भी की. आज तक जो बच्चा इतना कंप्लेन कर रहा था, बच्चे हमेशा जनरली कंप्लेन ही करते रहते हैं, लेकिन वो आप देखोगे कि आपको पता चलेगा कि सामने से भी आप उसके चेंज ऑफ फीलिंग्स आपको पता चलेगा. फील, यू विल फील दैट मम्मा मेरे लिए इतना कि मम्मा आई लव यू सो मच. आपको समय कैसा लगेगा? आपको तो लगेगा आपका दिन ही बन गया, आपने छोटा सा एफर्ट डाला, बट लुक एट द रिजल्ट, राइट? सेम इज विथ योर हस्बैंड. रोज आते हैं, वही है, भैया आ गया, खाना लगाया, बनाया, दिया, खिलाया, सो गए, काम खत्म. एक है कि लेट्स हैव अ फैमिली डिनर टुनाइट, सब साथ में खाते हैं, अच्छे से टेबल को लगाया. एक है जैसे तैसे सर्व किया, जैसे तैसे ले गया. एक है कि अच्छे से उसको टेबल को ले अप किया. रोज नहीं कर सकते, कभी कभी तो कर सकते हैं. कुछ एक पसंद का चीज बनाया, फेवरेट किया, अच्छी चीजें शेयर की. कितने जन होते हैं ना घर में, आते ही स्टार्ट द कंप्लेनिंग बॉक्स, जिसको बोलते हैं, कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं. आपको पता है आज आपके बेटे ने क्या किया, आपकी बेटी ने क्या किया, आज उसने क्या किया, उसने क्या बोला.
तो क्या होता है, वो उसके बाद उनका मूड भी खराब, आपका मूड भी खराब, क्या वो कॉन्वर्सेशन उस लेवल तक जाता है, अच्छा जाता है? फिर रात में ऐसे ही सब आर्ग्यूमेंट में सो जाते हैं. Now that's the worst thing to happen. Well, how can we turn up the volume? आप उसको अपने फीलिंग्स को कैसे एम्पलीफाई कर सकते हो? अगर आप वो रिलेशनशिप अपने बेटे के साथ, अपने इन-लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा करना चाहते हैं, हम लोग उसको एक एफर्ट डालेंगे, हम लोग उसको एम्पलीफाई करेंगे. कैसे? जो सामने वाले की पसंद है, आज अपने मदर इन लॉ का फेवरेट डिश भी बना सकते हो, राइट? अगर आप उनको एक बार दिन बना के दो तो सही, बोलेंगे वाह आज ये मेरे लिए बना, इतना अच्छा सोची कि आपने सोचा. इनको तो वैसे भी कुछ भी दे दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे भी तारीफ नहीं करने वाली हूँ. हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? विदाउट एक्सपेक्टेशन लेट्स डू समथिंग एंड सी द रिजल्ट कि सामने वाले के पास से क्या आ रहा है आपके पास. हाँ, वो जो दे रहे हैं, आप कभी एक्सपेक्ट मत करो, वो जो दे रहे हैं वो उनका कर्मा, जो हम दे रहे हैं ये हमारा कर्मा, राइट? अगर वो कुछ अप्रिशिएट नहीं भी कर रही हैं, आपको तो खुशी मिली, मैं आज उनको अच्छे से बना के खिलाई एंड उन्होंने खाया. Even if she doesn't appreciate, it's okay. आपका feelings बहुत important है, right? So that is very important because हम जो कर रहे हैं वो हमारे माथे आ रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो उनके कर्मों में अकाउंट में एड अप होता जा रहा है, right? So that is how amplify. So today I would like everyone कि घर में अपने कोई भी रिलेशनशिप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के लिए, या किसी और के लिए भी, अपने फ्रेंड के लिए भी, अपने नेबर के लिए भी, कुछ एक चीज करिए जिसको आप लगा, जैसे मैंने किसी का सुना था, एक वो मूवी आई थी ना लंच बॉक्स, उसमें एक तो नोट डाल के भेजते हैं टिफिन में. आज वो लंच बॉक्स खोला, वो नोट पढ़ते थे, एक वो इरफान खान और किसका मूवी था वो, तब्बू का था क्या, आई डोंट नो. सो उसमें जब वो उनको एक चिट मिलता था, वो जो पढ़ते थे कितना अच्छा लगता था ना. आज अपने हम लोग कितने जन का मैंने सुना है, बच्चे के टिफिन बॉक्स में भी कितने मदर्स लोग वो नोट लगा देती है, हैव अ गुड डे बेटा. तो वो खोलते ही टिफिन बॉक्स बहुत अच्छा फील आता है. आप अपने हस्बैंड के भी उसमें डाल सकते हैं, ट्राई नॉट. एक आज अब तो मोबाइल आ गया, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, राइट? एंड जब घर आए तो आप ऐसा कुछ स्पेशल डिनर वगैरह का भी कर सकते हैं. हाउ कैन यू एम्पलीफाई योर फीलिंग्स किसी भी रिलेशनशिप के लिए? लेट्स डू इट एंड देन टुमारो वी विल शेयर कि क्या आपका रिएक्शन आया सामने से और कैसा आपको फील हुआ. Yeah, we all can do that. Yes, so let's read one more paragraph quickly and today we'll end there. Yes, Jyoti. When you are feeling any good feeling, you can also amplify it by looking for things you love. Before sitting down to write this book, each day I spent several minutes amplifying my good feelings. To amplify my good feelings, I thought about all the feelings, all the feelings I love. All the I count things. all the things I love. I counted the things I love non-stop, one after the other. My family, my friends, home, flowers in the garden, the weather, colors, situations, events, and things I love that happened during the week, month, or year. I kept listening everything I love in my mind until I felt amazing. Then I sat down to write. It's as easy as that to amplify your good feelings, and you can do it anywhere at any time. या सो ये काम तो हम लोग ने कर लिया है, कल हम लोग ने किए थे ना, अपना लिस्ट बनाया था व्हाट यू लव डूइंग. नाउ थैंक यू ज्योति जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस सो ब्यूटीफुली. सो हम लोग ने इसको कर लिया है, अपना लिस्ट बनाया. Thank you so आई लाइक कि आप उसको रोज उसको पढ़ें. जब आप पढ़ोगे ना तो आपको कितना अच्छा फील होगा कि वाह मुझे ये सब करना कितना पसंद है. कितने कुछ हम लोग भूल चुके हैं करना, जो हम लोग पहले भी फ्रेंड्स के साथ, आप किसी फ्रेंड को कॉल करके भी बोल सकते हैं अरे याद है. अच्छा ये टाइम मेरे को हमेशा सबका बहुत अच्छा लगता है ना, जो फ्रेंड्स को, अभी हम लोग का एक तो फ्रेंड्स का ग्रुप है जिसमें हम लोग हर दिन किसी न किसी को अप्रिशिएट करते हैं, राइट? तो उसमें हम लोग ना स्कूल डेज तक चले जाते हैं, अरे याद है हम लोग ने वो किया था, ये किया था. तो वो जो फीलिंग्स आती है ना अच्छी वाली, आप सब देखो हमेशा हम लोग एकदम मुस्कुराहट आ जाएगी और बहुत हम लोग उस जोन में चले जाते हैं. कितना अच्छा लगता है ना वैसे जाते हुए याद करके. तो हम लोग कभी कभी वो भी कर सकते हैं, राइट? किसी फ्रेंड से पहले की बातें करके भी हम लोग अपने मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं ना. एम्पलीफाई ऑफ फीलिंग्स मतलब आज हम लोग जानबूझकर डेलिबरेटली अपने फीलिंग को इंटेंस करेंगे सो दैट वी फील गुड अबाउट इट. मतलब किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, राइट? सो एम्पलीफाई दैट फीलिंग एंड टू मेक दैट रिलेशनशिप more fruitful, more loving and more full of life. आप करके देखो. अभी हम लोग जब से मैजिक में आए हैं, हम लोग कुछ फ्रेंड्स लोग क्या किए, हम लोग ऐसा सरप्राइज करते हैं कभी कभी, किसी के यहाँ कुछ खाने का भेज दिया, कोई बुके भेज दिया, कोई चॉकलेट भेज दिया. मतलब इतना अच्छा फीलिंग. मेरे को भी बर्थडे में मतलब मुझे इतने सरप्राइजेस मिले, कितने जगह से चॉकलेट्स आए, गिफ्ट्स आए, ऑल सरप्राइज.
एक फ्रेंड मेरी सुबह मुझे ब्रेकफास्ट देके चली गई, यू नो, सच अ लवली फीलिंग। ऐसे लगता है अरे वाह, मेरे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतने अच्छे लोग हैं। आप जैसा दोगे, तो आप जब उसका बर्थडे आ रहा है तो मुझे भी मन कर रहा है कि मैं उसको क्या सरप्राइज क्या दूं। तो आप जैसा दोगे वैसा पाओगे, है ना। दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो जो देंगे वो मिलेगा, उससे डबल मेजर में भी मिल सकता है। ना मैं ये बोलना नहीं चाहती हूँ कि बोथ वेज में, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव दोगे तो वो भी मिलेगा, राइट। नॉट, इट डजंट वर्क ओनली इन पॉजिटिव थिंग्स एंड फीलिंग्स। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत भी जरूर मिलेगी। अगर प्यार डबल होके मिलेगा तो नफरत भी हो सकता है डबल होके मिले। सो बट हम लोग उसके बात हम लोग नहीं करेंगे नफरत की, क्योंकि हम नहीं, मैं नहीं चाहती किसी के लाइफ में भी वो आए और मिले। हम लोग सबके लाइफ में सिर्फ प्यार ही प्यार है, एंड इट इज ऑल इन आवर हैंड्स। सो लेट अस स्टॉप शेयरिंग, एंड इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। जहाँ भावनाओं की बातें आती है, फीलिंग्स की बात आती है, आई थिंक वी ऑल गेट इमोशनल एंड वी ऑल वांट आवर लाइफ टू बी हैपनिंग एंड एक्साइटिंग। सो यस, प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस। किस हो गए? I was that boring? No. I think Sunita Jiji want to say something. She's raising hand, I think. I can't see her. Sunita ji. Where is she? Palji, your explanation was as beautiful as Suvarnadi's, because I attended always her sessions. Anji. And if you remember, you took 3 days sessions of hers when she went to some. Yeah, I remember. कोई trip में गई थी. You did with us that heart visualization, heart magic. That was really beautiful. I still remember those and get those goosebumps. That visualization was like ultimate. And today's explanation was far beyond like anything. I just gave a direct message to Suvarnadi also, like she reminded you reminded me of her explanation. Oh. Yeah, we love each other. We are also like magic buddies. Yeah, I second Varsha ka feelings. Yes. हाँ, बस मैं तो जल्दी बोलती हूँ, मुझे बहुत जल्दी रहती है बताने की और बहुत बातें बताने की भी जल्दी रहती है। I replied to her saying that we are soulmates. तो हम लोगों का तो सेम ही रहेगा ना हर चीज। So true. Beautifully explained, Payal ji. Very nice. Even Swarna ji, you are also very good. Thank you. No, I feel I'm so fortunate to have joined this journey with you all. Matlab, I'm very fortunate. Like. Yeah. So that's a different thing. So कौन amplify करेगा जरूर and कल share करेगा. So let's do something and make our life happening and happy. We don't want okay kind of life, do we? We don't want okay kind of life. We want all a good and happening life, है ना? तो हम लोग तो ऐसे भी हम लोग का weekend तो happening है. We all friends are meeting on Sunday. Yes. Yes. और भी हम अरे लास्ट टाइम है ना सेशन में एक लेडी ने शेयर किया था इसी एम्पलीफाई योर फीलिंग का। मतलब शी वाज यू नो अ वेरी एल्डर लेडी अराउंड 65-70 एंड उन्होंने अपने हस्बैंड के टिफिन में वैसे ही चिट डाला था आई लव यू वाला। नेक्स्ट डे शी वाज लाइक कि इतना अच्छा लगा ना सुवर्णा, एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन किया एंड बोला कि आई लव यू टू। इट वाज लाइक और एक लेडी थी, उनके हस्बैंड बाहर गए हुए थे काम से आउट ऑफ स्टेशन, तो उन्होंने उनको फोन करके कुछ बोला यू नो कि आई एम मिसिंग यू वेरी मच, ऐसा कुछ उन्होंने भी शेयर किया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यू नो कि मैंने उनको कॉल किया व्हेन ही इज वर्किंग एंड ही वाज लाइक सो सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है। नहीं तो जनरली हस्बैंड जो वाइफ लोग कॉल करती हैं, हाँ बोलो क्या काम है, लगता है ना काम के लिए कॉल की होगी, और सामने से अगर ऐसा रोमांटिक सा आ जाए तो वो तो वहीं पे काम छूट जाएगा। नहीं ऐसे बोलेंगे आर यू ओके, इज एवरीथिंग फाइन, कुछ चाहिए तो नहीं था, मेरा क्रेडिट कार्ड ये है ले ले, वहीं रखा हुआ है। True, true. I got the same reply. बोलो ऐसे अभी और बहुत सी सरप्राइजेस आने वाली है। So I have already done this. Now my husband has gone for a trekking, so I have already sent him a message. तो ऑलरेडी नहीं माना जाएगा, कुछ और किसी और के लिए कुछ और कर लो यार। You have to do it again. असाइनमेंट थोड़ी है ये, तो डे टू डे भी हमको हर दिन करना है। यस, मेरा एक और शेयरिंग है, लेकिन अब मैंने जो वापस से कार्ड बनाया था और उसमें जो फर्स्ट लिखा था, आज मैं इसीलिए लेट थी क्योंकि मेरा फर्स्ट वाला फिर से फुलफिल हो गया। Oh wow! Congratulations. Congratulations. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन भी है, पायल, व्हाट यू वाज एक्सप्लेनिंग राइट नाउ,
उसमें जो फर्स्ट सिचुएशन था कि when you are listening to something wrong or something bad situation is happening and you should move away from that place and you should go inside your room or you listen to some music, maybe in that circumstances you are not able to move out and maybe you have not return में आपने कुछ नहीं बोला और आप सुन रहे थे, so those words keep hitting you sometimes and those words क्योंकि आप उसको पावर दे रहे हो ना सोच के, अब तो वो आप नहीं भी सोच रहे हो तो come again, या वो तो मेमोरी में गया है ना, आप उसी मेमोरी को वापस मतलब डिग कर रहे हो, निकाल रहे हो, ये बोला, so it is on you to don't dig that, not to dig that. तो हम लोग तो उसको सोच के, वो थॉट में क्या आ रहा है बार बार, क्योंकि वो जो वर्ड्स हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं ना, वापस से रिवर्ट कर रहे हैं, मतलब वापस से ला रहे हैं अपने, तो उसके बारे में सोच रही हो, इसीलिए वो वैसे नेगेटिव थॉट होते ही जाएंगे ना, अगर हम लोग को उसी थॉट को रिप्लेस करना है. पायल दी, okay, so basically you have to think something else, something good and means not think about it. Let that. तो जैसे I have 2-3 games on my mobile phone जो मुझे अगर ज्यादा स्ट्रेस देता है, कुछ होता है, मैं आके जल्दी से ना वो गेम, थिंकिंग गेम्स होते हैं ना जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, तो आप दो चीज तो एक बार में नहीं सोच सकते हो ना, either you are thinking about solving that puzzle or you are thinking about that person who has told you something. So I start playing that game. मेरा thought ही उधर चला Even I play such games. Sometimes it happens ना कि maybe you think you should means if you're not saying back, then maybe that person is taking you for granted and not. ये तो हमारा काम नहीं है, सामने वाला क्या सोच रहा है, वो तो फिर उसी पे चले गए, क्या कहेंगे लोग, वो जो सोच रहा है वो उसके करना नहीं, क्या कहेंगे लोग वाला चीज नहीं मैं बोल रही हूँ. आप अगर इनजस्टिस को भी वो करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग, नो. तो यू वांट टू, अच्छा ये आप पे है कि आपको आर्गुमेंट में जाना है, और यू कैन टेक अ पॉज and maybe that's not the right situation and you can talk it over to that person a little later when you are in a better state of mind. I would like to add पूजा दी यहाँ पे, जो पूजा जी आप जो बोल रहे थे ना कि ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप बोल नहीं पा रहे हो, आप बोलोगे भी नहीं और आपको करना क्या है, आप सुन तो रहे हो. मैंने क्या किया था पता है, मैंने मन में ऐसे थैंक यू लिटरली इट वर्क. मैं वो कर रही थी, वो तो मैंने वो सिचुएशन तो पार कर लिया, बट मेरे को बाद में वो वर्ड्स हिट कर रहे थे, मतलब आई डिड नॉट इवन वांटेड टू थिंक अबाउट दोस वर्ड्स, बट वो मेरे को हिट कर रहे थे, तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ कैन आई ओवरकम दैट. मींस मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी. ऐसी सिचुएशन में मैं कभी-कभी ये करती हूँ कि मेरे को ये लगता है इससे भी वर्स कुछ हो सकता था, इतना ही होके रह गया, मतलब ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही सोचा है, तो दिस इज माय सिनेरियो. Absolutely. No, that is true, Jyoti. I think means this is one of the best ways to make yourself understand and keep moving ahead. So that is true, very true. फिर आप बाद में सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि अभी वो गर्म है एकदम, अभी आप समझाओगे तो भी नहीं समझेगा, तो आप बाद में पॉइंट ऑफ व्यू रखो, वो बिल्कुल सॉर्ट आउट होता है. Okay. Thank you. Alji, my daughter wants to share something. Khushi. Yeah. Yes. Can we do our gratitudes, because then I have to leave. Okay. So if it's okay with others. Yes. Let's do our gratitude. So fold our hands and close our eyes and pay our gratitude to whoever you want to the universe, to the God you believe in. Thank you, Payal ji and Suvarna ji. Thank you, Payal ji. Thank you, Payal. Yes.